Hello everyone, myself Devkan Sharma, Associate Professor Chaudhary Devilal College of Pharmacy, Jagatri. Today our topic of discussion is designing the clinical trials from the unit Designing Research Methodology. आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि कैसे हम क्लिनिकल ट्रायल्स को डिज़ाइन करते हैं। ठीक है, और इससे पहले हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज क्लिनिकल रिसर्च, what are the types of clinical research, what are the principle of involved in the designing clinical trials, and what are the various phases of the clinical trials. So we start our today's lecture from designing the clinical trials. क्लिनिकल ट्रायल से पहले हमें पता होना चाहिए कि क्या क्लिनिकल रिसर्च है। क्लिनिकल रिसर्च किसे कहते हैं? क्लिनिकल रिसर्च वो रिसर्च होती है जिसमें जो पीपल हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं इन एनी टाइप ऑफ रिसर्च। कि मतलब जिस रिसर्च में हम पीपल्स को या उसमें हम पहले पढ़ चुके हैं जैसे कोहोर्ट में जो ग्रुप ऑफ पीपल होता है और जो वॉलंटियर्स होते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं, उसे हम बोलते हैं क्लिनिकल रिसर्च। क्लिनिकल रिसर्च के दो टाइप होते हैं, ऑब्जर्वेशनल स्टडीज एंड क्लिनिकल ट्रायल्स। ऑब्जर्वेशनल स्टडीज वी हैव done this topic from the last lecture, and today we will study about the clinical trials. तो क्लिनिकल ट्रायल क्या होते हैं? क्लिनिकल ट्रायल इज द रिसर्च स्टडी दैट आर परफॉर्म्ड ऑन द पीपल दैट आर meant at calculating a surgical, medical and behavioral intervention. And in this trial, researcher determine whether a new treatment like a new drug or a medical device is safe and effective for the people. तो क्लिनिकल रिसर्च में क्या होता है कि स्टडीज उन पीपल के पे की जाती है जिनको हम क्लिनिकल रिसर्च के लिए चूज करते हैं। और जो रिसर्चर है वो क्या डिटरमाइन करता है कि कोई भी नई ड्रग या कोई भी नया डिवाइस जिसकी हम क्लिनिकल स्टडी करते हैं कि वो कितना सेफ है और कितना इफेक्टिव है फॉर द पीपल्स। ठीक है, नाउ what are the principle of experimental design and analysis? There are near about 7 principles which are involved in the experimental design and analysis. First is absence of the bias. First principle is that there should be no bias, या the study should not be any biased study. बायस का मतलब होता है पक्षपातपूर्ण, कि हम इसको कैसे कैसे हमारी स्टडी अनबायस्ड हो सकती है। इसमें हम क्या करते हैं कि जो हमारी डबल ब्लाइंड स्टडी होती है हम उसको फॉलो करते हैं। इसमें क्या होता है, जो ऑब्जर्वर एंड द पेशेंट्स आर अनअवेयर ऑफ द ट्रीटमेंट बीइंग गिवन थ्रू आउट द कोर्स ऑफ द स्टडी। कि जब ऑब्जर्वर को यानी कि रिसर्चर को और पेशेंट को यही नहीं पता होता कि कौन से पेशेंट को हम कौन सी स्टडी उसको कौन सा ट्रीटमेंट दे रहे हैं। तो इससे क्या होता है, जो बायस्ड है वो अब्सेंस हो जाता है, बायसनेस नहीं होती। नेक्स्ट प्रिंसिपल इज absence of this systematic error. There should not be any type of systematic error during our studies. Next is adequate precision. There should be exactness and there should be increased precision and there should be purity in our study during the trials. Choice of the patients. Next principle is the choice of the patients. In this, the choice of patients include different types of possibilities. For example, their age, their gender, their severity to the disease, and concomitant to the disease. कि किस टाइप की एज फैक्टर, किस टाइप के एज के हमें पर्सन्स को इंक्लूड करना है, कैसा जेंडर है, किस टाइप की सिवियरिटी है उनकी डिजीज के साथ, और concomitant to the disease. Next is simplicity and symmetry. There should be simplicity in the study, and symmetry means there should be similarity, there should be identity, there should be equality in the study. And if the simplicity is the prime aim, and we emphasize the complex design have more limits and a resulting lack of the flexibility.
अगर कॉम्प्लेक्स रहेगा हमारा डिजाइन तो उसमें क्या रहता है, फ्लेक्सिबिलिटी की लैक रहती है। नेक्स्ट इज randomization. Next principle is randomization. Randomization is important topic. We have studied it in the last lecture. Randomization में हम क्या करते हैं कि जो हमारे ग्रुप है, जो हमारे कोहोर्ट हैं या जो हमारे वॉलंटियर्स हैं, हम उनको दो ग्रुप में डिवाइड कर लेते हैं। एक ग्रुप को हम बोलते हैं कंट्रोल ग्रुप, ठीक है, और एक को बोलते हैं रैंडम ग्रुप, ठीक है। तो क्या होता है, रैंडमाइज ग्रुप में हम क्या करते हैं कि जो एक ग्रुप को हम क्या देते हैं, एक मतलब कि या तो दो टाइप से करते हैं, या तो कंट्रोल ग्रुप को हम कोई भी नई ड्रग नहीं देते, उस पर कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करते। उसमें क्या, उसके जो वो कंपेयर करने के लिए किया जाता है। और जो हमारा रैंडम ग्रुप है उसमें हम ग्रुप को रैंडमाइज कर देते हैं कि एक को हम मेडिसिन देते हैं, दूसरे को नहीं देते, तो कंट्रोल के साथ उसका कंपैरिजन करते हैं, ठीक है। सो दिस इज द रैंडमाइजेशन। एंड लास्ट इज इंटेंट टू ट्रीट। इंटेंट टू ट्रीट में क्या होता है, इसको सिंपल लैंग्वेज में हम समझते हैं कि इंटेंट टू ट्रीट में हमारा कि जैसे हमने क्या किया, कुछ ग्रुप ऑफ पेशेंट्स को हमने इन्वॉल्व किया, लेकिन क्या हुआ कि ड्यूरिंग द स्टडी हम उनको इन्वॉल्व नहीं कर सके डाटा एनालिसिस में। इसका कारण कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल, दे लीव द स्टडी अर्ली बिकॉज ऑफ द नॉन ड्रग रिलेटेड कॉज, और दे टेक अनदर मेडिकेशन विच आर एक्सक्लूडेड इन द प्रोटोकॉल। उन्होंने ऐसी मेडिसिन ली जो हमारे प्रोटोकॉल में इन्वॉल्व ही नहीं है। और दे आर अनकोऑपरेटिव विद रिगार्ड टू द डोजिंग शेड्यूल। जो डोजिंग शेड्यूल है उसके साथ वो क्या करते हैं, अनकोऑपरेटिव है। तो ऐसे पेशेंट पे हम क्या कर सकते हैं, तो दीज आर द पीपल हु कुड नॉट बी इन्वॉल्व इन द डाटा एनालिसिस, बट एनालिसिस ऑफ द efficacy data should be performed by these peoples। तो इस ग्रुप को हम बोल देते हैं, जिसमें हम डाटा की एनालिसिस तो नहीं कर सकते ऐसे पीपल के साथ, बट एनालिसिस ऑफ द एफिकेसी डाटा शुड बी परफॉर्म विद दीज पेशेंट, एंड दिस ग्रुप इज नोन एज इंटेंट टू ट्रीट, ITT, ठीक है। तो ये दीज आर दी ऑल 7 principles which are included in designing clinical trials. Now, our topic is various phases of clinical trial. Clinical trial में कौन कौन से phases होते हैं? Normally यहाँ पे कितने 5 phases होते हैं। 5 phases होते हैं, phase 0, phase 1, phase 2, phase 3 and phase 4, ठीक है। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं फेज 0। फेज 0 जो हमारा फर्स्ट फेज होता है क्लिनिकल ट्रायल का, इसमें हम इसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि हाउ ए ड्रग इज प्रोसेस्ड इन द बॉडी एंड हाउ इट रिएक्ट्स विद द बॉडी। कैसे हम अपनी ड्रग को बॉडी के अंदर प्रोसेस कर सकते हैं और वो कैसे रिएक्ट करती है बॉडी के साथ। इसमें हम क्या करते हैं, वेरी स्मॉल डोज is given to the people, and there should be near about 10 to 15 people in this trial phase। केवल 10 से 15 लोगों पे हम ये क्या करते हैं, क्लिनिकल ट्रायल करते हैं। इसके बाद ही अगर वहां पे कोई फेज 0 के बाद ही हम फेज 1 में जा सकते हैं। नेक्स्ट इज फेज 1। फेज 1 का जो ऑब्जेक्टिव है वो है टू फाइंड द बेस्ट डोज ऑफ द न्यू ड्रग विद मिनिमम साइड इफेक्ट। कि मिनिमम साइड इफेक्ट के साथ हम कौन सी ऐसी बेस्ट डोज है, बेस्ट डोज का मीनिंग होता है कितनी क्वांटिटी हम ड्रग की दे सकते हैं मिनिमम साइड इफेक्ट के साथ। इसमें क्या होता है, जो हमारा ग्रुप है वो 15 to 30% का होता है, ठीक है। इसके बाद ही जब डोज अगर कोई साइड इफेक्ट नहीं दिखाती, और तब ही हम इसको और फेज 1 जो है हमारा कंडक्ट करते हैं टू टेस्ट द सेफ्टी ऑफ ए ड्रग, ठीक है। इसके बाद ही हम फेज 2 की तरफ जाते हैं। फेज 2 ऑफ द क्लिनिकल ट्रायल इज परफॉर्म टू चेक हाउ सेफ इज द ड्रग। ड्रग कितनी सेफ है, और इसमें द ड्रग इज ऑफन टेस्टेड इन पेशेंट्स हैविंग स्पेसिफिक टाइप ऑफ कैंसर। मीन्स ड्रग को हम ऐसे लोगों पर चेक करते हैं जिनको एक स्पेसिफिक टाइप का कैंसर होता है। एंड द सेकंड स्टेज इज टेस्टेड इन लार्ज ग्रुप ऑफ पेशेंट्स। इसमें जो पेशेंट्स का ग्रुप है वो बड़ा होता है,
बट इसमें हम नई ड्रग को किसी स्टैंडर्ड केयर ड्रग के साथ कंपेयर नहीं करते। ठीक है, फेज 2 में हम क्या करते हैं, ड्रग की सेफ्टी को चेक करते हैं, कितनी सेफ है वो। और इसमें क्या करते हैं, हमें याद रखना है, फेज 2 में हम अपनी ड्रग को ऐसे पेशेंट्स पे टेस्ट करते हैं जिनको किसी भी एक स्पेसिफिक टाइप का कैंसर होता है, और इसमें न्यू ड्रग को किसी स्टैंडर्ड केयर ड्रग के साथ कंपेयर नहीं करते। नेक्स्ट इज द फेज 3। एट दिस फेज ऑफ द क्लिनिकल ट्रायल्स वी कंपेयर न्यू ड्रग विद द स्टैंडर्ड केयर ड्रग। फेज 2 में हम कंपेयर नहीं करते, लेकिन फेज 3 में हम नई ड्रग को स्टैंडर्ड केयर ड्रग के साथ कंपेयर करते हैं। इसमें जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं ड्रग के वो डिटरमाइन किए जाते हैं, और इसमें जो ग्रुप है वो नियर अबाउट 100 और मोर देन 100 पेशेंट्स का हम बनाते हैं। और इसमें क्या होता है, इस फेज में ही हम अपना जो रेंडमाइजेशन वाला जो टॉपिक है हमारा, रेंडमाइजेशन ऑफ ड्रग इज नेसेसरी। इसमें हम क्या करते हैं, रेंडमाइजेशन करते हैं, हम एक रैंडम ग्रुप बनाते हैं, ठीक है, और एक हम अपना कंट्रोल ग्रुप में उनको डिवाइड करते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया है कि रैंडम वाले में हम क्या करते हैं, मतलब अपने जो ग्रुप को है दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, एक को हम ड्रग देते हैं, दूसरे को नहीं देते, और उसको हम कंट्रोल के साथ कंपैरिजन करते हैं। लेकिन दूसरे तरीके से अगर हम फेज 3 का ट्रायल देखें, इसमें हम क्या कर सकते हैं, जो हमारा कंट्रोल ग्रुप है उसको हम जो हमारा स्टैंडर्ड केयर ड्रग है वो देते हैं, और रेंडमाइज वाले को हम न्यू ड्रग देते हैं, फिर उसको हम उसके साथ कंपेयर कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन फेज 3 जो क्लिनिकल ट्रायल है ये सबसे ये एफडीए की अप्रूवल से पहले किया जाता है। ठीक है, और एफडीए की अप्रूवल के बाद हम फेज 4 को करते हैं। तो नेक्स्ट इज फेज 4 ट्रायल। फेज 4 ट्रायल्स आर परफॉर्म टू टेस्ट द न्यू ड्रग अप्रूव्ड बाय द एफडीए। एफडीए से अप्रूव के बाद हम उसको फेज 4 का ट्रायल करते हैं, क्योंकि हम इसको क्या करते हैं, जनरल पीपल्स पे परफॉर्म करते हैं। एंड द ड्रग इज टेस्टेड ओवर हंड्रेड एंड थाउजेंड्स ऑफ द पेशेंट्स, एंड दिस परमिट द बेटर रिसर्च on short term and long lasting side effects and safety. For example, rare side effects may be seen in the large groups. Doctors can also understand how well the drug works and when it is used along with the treatments. फेज 4 का जो ट्रायल है वो एफडीए के अप्रूवल के बाद होता है, और ये जनरल पीपल्स पे किया जाता है, लोकल पीपल्स पे किया जाता है, नॉट ओनली ऑन दी वॉलंटियर्स। और इसमें जो ग्रुप का साइज है ये हंड्रेड्स में और मोर देन थाउजेंड्स में भी हो सकता है। जितना बड़ा ग्रुप होता है उतने ज़्यादा हमें साइड इफ़ेक्ट्स का पता चलता है, और ड्रग की एफिकेसी का पता चलता है। सो दीज आर दी 5 phases ऑफ द क्लिनिकल ट्रायल्स। थैंक यू।